ہم پہلے کلمے کا آغاز کریں گے اور میں خدا کے خادم پاسٹر بابا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پہلے کلمے کا آغاز کریں۔ عظیم جلالی بابرکت قدوس پاک اور اتم نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ پہلے کلمے کا آغاز کرنے سے پیشتر میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ دکھوں کی گھڑیاں ہیں، لیکن بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کلمات کو سنیں جس کا آغاز کرنے کو ہوں۔ پہلا کلمہ، اے ہمارے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 23 باب اور 34 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، یہ کلمات مسیحیوں کے لیے ایک عظیم خزانہ ہے جن کی قدر و قیمت ہیرے جواہرات سے کہیں زیادہ ہے۔ پہلے 3 کلمات جو ہیں یہ دنیا کے لیے کہے گئے کیونکہ خداوند کو اپنی نسبت دوسروں کی زیادہ فکر تھی۔ پہلا کلمہ تمام دشمنوں کے لیے ان کی معافی کا کلمہ ہے۔ لوکا 23 باب اس کی 34 آیت میں اس وقت خداوند مسیح صلیب کے اوپر لٹکے ہوئے تھے، صبح کے تقریباً 8 بجے وہ راہ غم کو عبور کر رہے تھے، کرتے ہوئے کوہ کلوری پر پہنچ رہے تھے۔ راستے میں 2-3 بار گرنے سے بھوک اور پیاس میں نڈال کوڑوں کی مار سے ان کے بدن کو چھلنی کیا اور 9 بجے صبح مصلوب کرنا شروع کیا گیا۔ ہمارے محبوب کی زبان پر مبارک جو کلمہ نکلا وہ دشمنوں کے لیے ان کی محبت کا کھلا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ جو پیش کرتے ہیں کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ 3 باتیں واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ نمبر 1، خطاب تھا، اے باپ جس کے معنی ہے اے باپ۔ نمبر 2، درخواست، اس کا معنی ہے کہ ان کو معاف کر۔ نمبر 3، دلیل تھی کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ عزیزو، خدا کے پیارے لوگوں، پیارے مسیحیوں، خداوند یسوع مسیح کو جب صلیب پر چڑھا دیا گیا اور جو وہاں کے رومی سپاہی تھے وہ اس کو ٹھٹھا کرتے کہ اگر تو مسیح ہے تو تو دوسروں کو بچاتا ہے تو آج اپنے آپ کو بھی بچا۔ لیکن خداوند یسوع خاموش رہے۔ ان کے لیے یہی ان کے منہ سے لفظ نکلا کہ اے باپ تو انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ آمین۔ ہمارے میٹنگ پر سائڈ بھائی آصف ہیں، وہ دوسرا کلمہ بولیں گے۔ اسی میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کا دوسرا کلمہ سلیپی لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 43 ہے۔ اس نے اس سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جب یسوع ناصری کو صلیب تھی تو یسوع ناصری 2 ڈاکوؤں کے درمیان میں یسوع ناصری کو صلیب دی گئی۔
एक डाकू यीशु को दंश करने ला पड़ा। उसने कहा अगर तू खुदा है तो हमें भी बचा और खुद भी बात। मगर इसी तरह दूसरे डाकू ने कहा क्या तू खुदा से नहीं डरता? और उसने खुदा से कहा ऐ खुदा जब तू अपने जलाल में आए तो मुझे भी याद रखना। और खुदा ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। ये निजात का कलमा है। उस डाकू ने यीशु पर ईमान लाया, वो डाकू, और उसने ईमान लाने के बाद निजात पाई। और खुदा ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। इस बात उसने निजात पा ली। और इसी तरह जो यीशु नासरी पर ईमान लाता है वो निजात पाता है हर गुनाह से, हर बदी से। और हमारा भी राइट बनता है कि हम अपने जिंदा पाक खुदा पर ईमान रखें तो हम लोग भी निजात पाएंगे। पहले कलमे का मतलब था माफी और दूसरे कलमे का मतलब है निजात। इस बाई उस डाकू ने निजात पाई। आमीन। इसी तरह आज हम तीसरा कलमा जो है बेटी हमारे दारुल मियान में है, बेटी मैं उसे दावत दूंगा कि वो तीसरा कलमा बोले। ये तीसरा कलमा मोहब्बत। यूहन्ना की इंजील 19 बाब उसकी 27 आयत। ऐ औरत देख तेरा ये बेटा है। फिर शगीर से कहा देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शगीर उसे अपने घर ले गया। अजीजों, यहाँ हम एक ऐसी माँ को देखते हैं जो अपने पहलौठे बेटे को दुख तकलीफ में देख रही है। वो ना अंदर से टूट चुकी है, लेकिन वो खामोश है क्योंकि वो खुदा की मर्जी को शुरू से जानती थी। और अगर हम यीशु मसीह को देखते हैं कि जब वो सलीब पर मसलूब हो रहे हैं, जब उन्होंने अपनी माँ को देखा तो उसने जिस्मानी तौर पर अपने पहलौठे होने का हक अदा किया, क्योंकि ये पहलौठे का काम फर्ज होता है कि अपने वालिदैन की खिदमत करे। यीशु मसीह ने अपने एक शागिर्द से कहा कि ये तेरी माँ है। ये वो शागिर्द है जिसे खुदा जानता है कि वो कभी भी उसकी माँ तन्हा ना छोड़ेगा। जब यीशु पकड़ा गया सब शागिर्द यीशु को छोड़ गए, मगर यूहन्ना यीशु मसीह के साथ रहा। यीशु मसीह को यूहन्ना से एक अलग मोहब्बत थी। उसने किसी भी सूरत, किसी भी तकलीफ में यीशु मसीह को अकेला ना छोड़ा। यीशु मसीह जानता था कि यूहन्ना माँ मरियम को कभी भी अकेला ना छोड़ेगा। और यूहन्ना की मोहब्बत खुदा से देखें, उसने कोई सवाल ना किया, ना कोई बात की, बल्कि खुदा के हुक्म को मानते हुए खुदावन यीशु मसीह की माँ को अपने घर ले आया और उसकी खिदमत करने लगा। ऐसी मोहब्बत हमें खुदा से करनी चाहिए जिसमें कुछ शक, कोई सवाल ना हो। खुदा ऐसी मोहब्बत हमारे दिलों में डाले। आमीन। दरमियान बेटी मुकद्दस तारीख है, वो बयान करें। उसका चौथा कलमा कफारे का कलमा। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27 बाब उसकी 45 से 46 आयत तक हम पढ़ेंगे। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया।
पहले 3 कलमे अगर हम देखें तो वो रोशनी में कहे गए, लेकिन अगर चौथा कलमे की तरफ हम तवज्जो करें तो चौथा कलमा जो है वो जब खुदावन ने कहा तो तमाम मुल्क में तमाम तरफ अंधेरा छा गया। चौथा कलमा खुदा की इंसानी जिस्म और औलियत का इजहार करता है। ये बहुत ही दर्दनाक बात है कि जब खुदावन ने कहा ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावन कभी किसी को तन्हा नहीं छोड़ता, हत्ता कि बाप आदम को जिसने गुनाह किया उसको भी खुदावन ने तन्हा नहीं छोड़ा। इसलिए हमें चाहिए कि हम खुदावन के साथ लिपटे रहें और खुदावन के साथ पवित्र रहें। खुदावन का ये कहने का मकसद ये था कि खुदावन दुख देकर, खुदावन इंसानी दुख सह कर और खुदावन अपनी जान देकर हमें रिहाई बख्शे, और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम खुदावन के साथ पवित्र रहें, खुदावन के साथ लिपटे रहें और खुदावन की मर्जी पर चले। आजकल के इंसान जो उनसे हैं, अगर खुदावन खुदावन की दुआ न सुने तो वो खुदावन से पीछे हट जाते हैं। हमें चाहिए कि हम खुदावन के साथ लिपटे रहें, खुदावन से ऐसी मोहब्बत करें जैसे इसने इस जहां से की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने अपनी जान देकर हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाया ताकि हम निजात पाए, रिहाई पाए। खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल किया, इसलिए हमें खुदा की मोहब्बत की कदर करनी चाहिए और उसके साथ लिपटे रहना चाहिए। आमीन। हमारे दरमियान जो है इवेंजलिस्ट खुदा के खादिम भाई जुवेद जो है खुदा के जो मुबश्शिर है। उसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना और समझा जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। सब से कहे आमीन आमीन। ये देखे जो 5वां कलमा है, ये आसमानी दुखों का भी कलमा कहा जाता है, ये आसमानी परेशानियों का भी कलमा कहा जाता है, और बाज़ लोग इसे पानी का भी कलमा कहते हैं। और जो 5 आदत है ये खुदा के फजल को, उसके फजल को बयान करता है। जब हम यीशु मसीह की खिदमत को देखते हैं, उनकी जिंदगी को देखते हैं, तो ये भी एक नविश्ता पूरा हुआ है। जब यीशु मसीह ने उसके साथ बैठे, उनके साथ बात की, तो ये भी एक नविश्ता पूरा होता है। तो जब यीशु मसीह ने पानी मांगा, पानी का इजहार किया, तो उसे पानी नहीं दिया, तो ये भी एक नविश्ता पूरा होता है। और यीशु एक काबिल इंसान थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कलाम यीशु के दुखों को बयान करता है, ये कलाम यीशु को बयान करता है। जब किसी एक इंसान के ऊपर गमों का पहाड़ टूट जाए और पूरी दुनिया का बोझ उनके कांधे के ऊपर हो, तो मुझे बताएं उनके ऊपर क्या बीती होगी। तो यीशु एक कामिल इंसान थे। तो जब यीशु ने पानी मांगा और पानी का इजहार किया, और लोगों ने सुना भी है कि यीशु पानी मांगता है और यीशु को पानी नहीं दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु ने खुदा के कलाम को पूरा किया, यीशु ने खुदा को तरजीह दी, यीशु ने खुदा की बातों को पूरा किया। और जब यीशु को ये मालूम पड़ा जो मेरी बाबत बातें लिखी गई हैं, जा हो गई हैं, जा हो रही हैं, ये सब नविश्ते पूरे हो। तो यीशु ने कहा मैं प्यासा हूँ, क्योंकि यीशु एक कामिल इंसान थे। और जब यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी को देखते हैं, यीशु मसीह का पैदा होना देख लें, यीशु मसीह की टीचिंग को देख लें, यीशु मसीह के मौजों को देख लें, तो ये भी सब नविश्ते पूरे होते हैं। यीशु मसीह के हाथों में कील ठोके जाने, पाँव में कील ठोके जाने, कांटों का ताज पहनाया जाना, ये भी सब नविश्ते पूरे होते हैं। जब यीशु मसीह की जिंदगी में हम देखते हैं, यीशु मसीह का मर जाना, जी उठना, ये भी सब नविश्ते पूरे होते हैं। तो यीशु एक कामिल इंसान था। जब यीशु ने पानी मांगा और यीशु को पानी नहीं दिया। और जब हम यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी को देखते हैं, तो यीशु जब गाना गलील में गए, तो उसने पानी को मैं बना दिया। यीशु ने पानी से बपतिस्मा लिया, यीशु ने पानी से बपतिस्मा दिया, और यीशु पानी के ऊपर चला। और जब यीशु कश्ती में अपने शागिर्दों के साथ जा रहे थे, तो उसने हवा को और पानी को ढांढा, क्योंकि यीशु एक कामिल इंसान था। और जब यीशु ने पानी मांगा और उसे पानी नहीं दिया, और ये पानी आलमगीर दुनिया की जरूरत है, ये पानी हवानों की जरूरत है, ये पानी इंसानों की जरूरत है, ये पानी परिंदों और चरिंदों की जरूरत है,
ये पानी पौधों की जरूरत है, क्योंकि पौधे भी एक जानदार होते हैं। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन आमीन। जो अभी खुदा के खादिम इवेंजलिस्ट भाई छुबे बख्शेगा जो हम गुनाहगारों को फरदौस में। 7वां कलमा इवेंजलिस्ट जो हमारे दरमियान है, बेटी कायनात जो खुदा की मुबश्शिरा है। अब हम उनसे सुनेंगे। मसीह में आप सबको सलाम। आज का छठा कलमा फतहमंदी का कलमा। खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 30 आयत। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। अगर हम यीशु मसीह को देखें तो ये सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए। खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में क्या करने आए। खुदा यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का मकसद क्या था, हम में से हर कोई जानता है। लेकिन जो लोग इस बात को जानते हैं वो अभी भी खुदा की इस मोहब्बत को अपने दिलों में अपने अंदर समेट नहीं पाए। खुदा यीशु मसीह को अगर हम देखें तो जब कोई कलवरी पर 2 चीजें पीने के लिए दी गई, एक पिस मिली हुई में और दूसरा सिरका। पिस मिली हुई में एक ऐसी चीज है जिसे पीकर जो इंसान है वो मदहोश हो जाता है और उसे दर्द का एहसास नहीं रहता। लेकिन यीशु को पता था कि वो किस मकसद के लिए इस दुनिया में आया है। यीशु मसीह ने आसान मौत को रद्द कर दिया। यीशु मसीह ने उस मौत को कबूल किया जो इंतहाई दर्दनाक और कुर्बनाक थी। उसने अपनी जान बनी इंसान के लिए दी, क्योंकि वो इंसान की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इलाज करना चाहता था। उसके पाक लहू ने वो दरवाजे खोल दिए जो असल से जो एक ऐसी वजह से एक ऐसे गुनाह की वजह से बंद थे। मसीह यीशु ने उन दरवाजों को उन दीवारों को गिरा दिया। यीशु मसीह जानते थे कि उनका मार खाना, उनके बदन का टूटना, उनके एक एक लहू के कतरे का बहना इंसान की निजात का बाइस है। अगर यीशु मसीह अपने लहू को ना बहाते तो आज हम लोग गुनाहों में मुब्तला होते और गुनाह में हलाक हो जाते। खुदा की मोहब्बत देखें, उसकी मोहब्बत जो उसने अज़ल से आदम से की और आज भी हम सबसे करता है। उसने अपना पाक लहू अपने आप को अजीज ना रखा, बल्कि उसने आप को तोड़ा, उसको कोड़े मारे गए, उसको ठट्ठों में उड़ाया गया, उसका मजाक बनाया गया, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, लेकिन वो खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। आप लोग क्या समझते हैं कि ये यीशु की कोई मजबूरी थी? नहीं, बल्कि वो ये बर्दाश्त करना चाहता था। वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वो इब्लीस को, बदियों को और जो कुछ ही खुदा हासिल करने आया है उसको हासिल कर ले। इसीलिए यीशु मसीह ने हर एक नविश्ता को जो उसके हक में बयान किया गया था पूरा किया। खुदा यीशु मसीह दुनिया के लिए, हम लोगों के लिए रूह ज़मीन पर आया, उसने मनादी की, उसने तालीमात दी और फिर उसने हमारे लिए कफारा अदा किया ताकि हम लोग रिहाई पाए। हालेलुया। हम लोग क्या पाए? रिहाई। कौन जानता है कि उसको रिहाई मिल गई है? अभी तक इब्राहिम, ये फर्क होता है जो कलाम सुनते और जो कलाम नहीं सुनते। जिनका ध्यान खुदा की कलाम की तरफ है वही बरकत को पाते हैं। अब सब कहेंगे ये तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन सिर्फ सुनने की हद तक आप लोगों ने ये चीज रखी है। अमल का, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका दूर दूर तक कोई असर नहीं है। यही वजह है कि खुदा पास नहीं आता, खुदा आपकी बातें नहीं सुनता, खुदा आपकी दुआओं को कबूल नहीं करता। उसने अपने जिस्म को टूटने दिया ताकि हमारी जो बीमारियों का ज़ाला हो सके, हमारी बीमारियां दूर हो
सके। और जब तमाम काम जो यीशु मसीह रूह ज़मीन पर करने आया था पूरा हो चुका, तमाम नविश्ते, तमाम सहीफे जो उसके हक में कहे गए थे वो मुकम्मल हुए, तो यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ और उसने जान दे दी, उसने कुर्बानी दी। इसीलिए हमें अपने खुदा के लहू की कदर करनी चाहिए। और उसने अपना लहू बहाकर उस दरवाजे को तोड़ डाला जिसकी वजह से हम लोग गुनाहों में दसे रहते। उसने हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाया ताकि हम निजात हासिल करें और उस समय यरूशलेम के वारिस बने। हालेलुया। इसलिए हमें खुदा के साथ व्यवस्था रहना है। और जिस तरह उसने आखिर तक हमसे मोहब्बत रखी, हमें भी चाहिए कि हम जान देने तक उसके वफादार रहें और आखिरत में जिंदगी का ताज पाएं। हालेलुया, आमीन। सातवां जो अब मैं आप लोगों से शेयर करने को हूँ, खुदा जो आसमान और जमीन का मालिक और खालिक है। खुदा के कलाम में लिखा है, इब्तदा भी हमारा खुदावंद यीशु है, इंतहा भी हमारा खुदावंद यीशु है, अल्फा भी हमारा खुदावंद यीशु मसीह है और ओमेगा भी हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। अगर हम यीशु मसीह की बात करें तो यीशु मसीह एक ऐसी हस्ती है, एक ऐसा नबी है, एक ऐसा पैगंबर है, एक ऐसा खुदा है जिसको सारे लक़ब दिए गए। यीशु मसीह को बहुत से लक़ब दिए गए। यीशु मसीह को ईल भी कहा गया, यीशु मसीह को यहोवा भी कहा गया, यीशु मसीह को जिंदगी का रोटी भी कहा गया, जिंदगी का पानी भी कहा गया। यीशु मसीह को मेरे से बहुत ज्यादा लक़ब दिए गए। अगर हम बाइबल मुकद्दस की स्टडी करें, अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें या तारीख की किताबों में देखें, तो 100 से ऊपर मेरे अज़ीज़ों खुदावंद यीशु मसीह को लक़ब दिए गए। 100 से ज्यादा मेरे अज़ीज़ों यीशु मसीह को लक़ब दिए गए हैं। यीशु मसीह को अंगूर का दरख्त भी कहा गया है, चट्टान भी कहा गया है, आसा भी कहा गया है। बहुत से लक़ब जो है खुदावंद यीशु मसीह नासरी को दिए गए हैं। और मैं एक बात आपको वाज़ेह तौर पर यह बयान कर दूं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस मुल्क में मेरे अज़ीज़ों हमारा जन्म हुआ है, जिस मुल्क में हमने अपनी आंख खोली है, इस मुल्क में बहुत से मेरे अज़ीज़ों फिरके हैं और बहुत से लोग ये बात वाज़ेह तौर पर ये कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं, यीशु मसीह खुदा नहीं, यीशु मसीह जो है नबी है, यीशु मसीह खुदा नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात वाज़ेह तौर पर बयान कर दूं, जो लोग बाइबल मुकद्दस को रीड करते हैं, जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, मेरे उनको ये पता है कि यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है, यीशु मसीह मसीह है, यीशु मसीह खुदा का कलमा है, यीशु मसीह ही खुदा है। ये यीशु मसीह के वसीला से ही आसमान और जमीन तख्लीक हुए हैं। मैंने एक कलाम किया जिसका मैंने नाम रखा नबी या नबी से बड़ा, नबी या नबी से बड़ा। मेरे जो कुछ लोग हैं कौम जो है ये कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं, यीशु मसीह सिर्फ एक नबी है, ये नबी से और कुछ नहीं, इसके अलावा यीशु मसीह कुछ नहीं, सिर्फ एक नबी है। लेकिन यीशु मसीह नबी नहीं, नबी से भी बड़ा है, वो खुदा है। और मेरे दोस्तों अगर बाइबल मुकद्दस में हम देखें तो बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है कि जब कुछ भी न था, जब कुछ भी न था, सब पानी पानी था, न आसमान था, न जमीन थी, न चांद था, न सितारे थे, न पहाड़ था, न समंदर थे, कुछ भी न था, सब पानी पानी
सब अंधेरा ही अंधेरा था और जमीन से कहर उठता था। जमीन से क्या उठता था? कहर उठता था। जमीन से कहर उठता था तो उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह का रूह जो था वो पानियों पर जुम्बश करता था। और हम ईमान रखते हैं मसीह को कि यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह खुदा का कलमा है, यीशु मसीह के वसीला से आसमान और जमीन तख्लीक हुए हैं। हम सब ईमान रखते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम हमें वाज़ेह तौर पर ये बयान करता है कि जब कुछ भी ना था, और सच में जब कुछ भी ना था, खुदावंद यीशु मसीह का रूह पानियों पर जुम्बश करता था। और इसी बात को अगर हम न्यू टेस्टामेंट में ले आते हैं, नए अहदनामा में ले आते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह जब इस रूह ज़मीन पर खिदमत कर रहे हैं, आप लोग तो जानते हैं, ये जो खुदा के कलाम को आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग तो जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे खातिर मुआ। उसके बावजूद भी आज भी आप लोग यही नारा लगा रहे हैं कि यीशु को सलीब दो, यीशु को सलीब दो, यीशु को सलीब दो। तो आप कैसे सलीब दे रहे हैं? आप ऐसे सलीब दे रहे हैं जब आप खुदा की तारीफ नहीं करते, जब आप बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ते, जब आप चर्च में नहीं जाते, जब आप मुकद्दस दिन की बेहरमती करते हैं, जब आप मेरे अज़ीज़ों खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, गुनाह करते हैं, ज़नाकारी करते हैं, चोरी करते हैं, नशाबाजी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, जब आप ऐसे काम करते हैं तो आप क्या करते हैं? यीशु मसीह को सलीब पर लटकाते हैं। हालेलुया। तो यीशु फिर भी हमारे लिए, मेरे अज़ीज़ों, यही चाहता है, अपने बाप से यही कह रहा है कि बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते। अच्छा, मैं ये बता दूं, मैं कलाम क्यों लंबा करता जा रहा हूँ, आपको तो पता चल ही चुका। मैं इससे कलाम को, फिर भी उसके बावजूद उसने कहा कि अब आप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। मेरे अज़ीज़ों, सातवां कलमा खुदा की मोहब्बत को और सारे काम को, जिस काम के लिए खुदावंद यीशु मसीह रूह ज़मीन पर उतरा था, उस काम को मेरे अज़ीज़ों बयान करता है। हालेलुया। और मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह खुदा हमसे मोहब्बत और प्यार करता है, हम भी उसी तरह खुदा से मोहब्बत और प्यार करें। आज के सारे 7 कलमात के लिए और जितना भी लोगों ने जितना भी आप लोगों के आगे खुदा के कलमे को सुनाया, उससे आप सबको बरकत मिले और हमें। आमीन आमीन। तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बांट दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल और उसकी मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत कुल मुक़द्दसीन के साथ, कुल आलमगीर कलीसिया के साथ, बड़ी इसराइल के 12 कबीलों के साथ, बड़ी इसराइल के बुजुर्गों के साथ, इस कलीसिया के साथ, इस चर्च के साथ, मुल्क पाकिस्तान में जितने भी चर्च है, जितनी भी कलीसिया है, उनके साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस पाक और रूह के नाम में आमीन। खुदा